नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आपका चर्चा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि जलंधर की अग्नि परीक्षा किसके लिए जो है सीता साबित होगी। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी क्या अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आयातित कैंडिडेट के जरिए वहां पर जीत हासिल कर सकेगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल में सेंध मारकर लाए गए कैंडिडेट के बूते अपना एक और सांसद बढ़ा पाएगी? और क्या अकाली दल अपने पिछले स्कोर को ही संरक्षित कर पाएगी? इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर के चर्चा है, क्योंकि इस समय जलंधर चुनाव में, जब जलंधर का चुनाव चल रहा है, वहां का मतदान हो रहा है, उस वक्त हम आपसे यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मतदाता किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में पंजाब की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से जानने वाले जसवीर सिंह पट्टी हैं, और हमारे साथ में कुलदीप सिंह जी हैं, पंजाब की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार हैं, जो अच्छे ढंग से राजनीति को समझते हैं। तीनों लोग पत्रकार हैं, और आज मैंने इसीलिए पत्रकारों से बात करने का फैसला किया, क्योंकि आज पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक किस तरह से इसको देखते हैं, तो चूंकि सभी राजनीतिक विषयों पर अपनी चर्चाएं रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब यह चुनाव हो रहा हो तो कैसे देखते हैं। पहले शुरुआत में पट्टी साहब से ही करता हूं। पट्टी साहब, आप अमृतसर में बैठे हैं, जलंधर आपके इर्द गिर्द है, आप वहां घूम के आए हैं, तो उस स्थिति में आपको कैसा लग रहा है कि जलंधर की यह अग्नि परीक्षा किसको सीता की तरीके से सोने सा तपा हुआ निकाल के लाएगी, और कौन जलंधर अपने कब्जे में ले जाएगा, और पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी जसवीर जी। पंजाब की राजनीति ते ਇਹਦੇ तक कोई असर नहीं पेगा, लेकिन पोलिटिकल पार्टियां ने अपने से जरूर पेगा। ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟਲੀ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੈਪ ਸਨ। ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਤੇ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 97 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਪਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਜਪਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਆਣੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸੀਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਵੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 18-19 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਵਾਰੀ 14-15 ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕਾਮਾ ਗੁਜਰਾਲ, 1 ਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਮਤ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥੜੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ किथे रहना चाहिए। जी, बड़ी बात कही है जसवीर जी ने कि जिस तरीके से चुनाव है इसमें पहली बार कांग्रेस ने इतनी एकता दिखाई है। कांग्रेस के नेता अलग अलग तमाम जगहों पर गए हैं, तमाम सारे नेताओं से मिल रहे हैं, और जब नेताओं के साथ साथ जनता से जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते थे कि हर व्यक्ति के पास नेता को खुद जाना चाहिए, कांग्रेस ने वो करके दिखाया है इस बार। लेकिन वो सीट बचाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो यहां सत्ता में है उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उसके पास में लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जरूर मिल गया, लेकिन लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं। यह एक बड़ी विडंबना है। इस विडंबना के बीच में संगरूर का चुनाव पंजाब जीतने के बाद में, भारी मैंडेट से जीतने के बाद में, पंजाब में संगरूर की सीट, खुद जो मुख्यमंत्री की सीट थी, वो आम आदमी पार्टी हार गई। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से उसके लिए एक अस्तित्व का सवाल है। उधर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी वो भी परेशान है कि हम जब पूरे देश में इन प्रकार जीत हासिल कर रहे हैं तो आखिर पंजाब में क्यों नहीं हो पा रहा। और जब हमने पंजाब में पूरी कांग्रेस की पुरानी ट्रेडिशनल जो उनकी लीडरशिप थी वो सब तोड़ दी, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री, उनके तमाम सारे लोग तोड़ दिए, उसके बावजूद कांग्रेस जो है जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन जाती है। इससे वो परेशान है, इसलिए वो चाहते हैं कि रीढ़ तोड़ी जाए। अब इसी पर सवाल है कुलदीप जी आपसे कि जब यह स्थिति हो तो, और बाकी अकाली दल के लिए अपने अस्तित्व का सवाल है, तो ऐसी स्थिति में आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? जी देखिए, और जो वोटिंग ट्रेंड है, जो वोटिंग ट्रेंड है उस पर भी बात कर दीजिएगा। जी जी ਤੁਸੀਂ शुक्ला जी सारी गल वैसे तो खुद ही क्लीयर कर दी है। इस तो पहला जसबीर सिंह पट्टी उन्होंने सारी गल जी उस तो पहला क्लीयर की है। मैं एक गल जरूर सोचदा कि देखो 1999 तो इत्थे कांग्रेस पार्टी जी है काबज है, ते कांग्रेस पार्टी नूं इहदा बहुत वड्डा फायदा मिलना इस इलैक्शन दे विच। एक तां उन्हां नूं सिंपथी वोट है, दूजा एक गढ़ कांग्रेस दा पिछले कई सालों तो चलिया आ रहा, तीजा जिहड़े मूसेवाला दे पिता ने जिहड़ी कीती है अनाउंसमेंट, अपील की, वोट अपील वो की है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सो कांग्रेस का वैसे भी हुण इस टाइम पूरा जोर तुसीं जिहड़ी गल कीती है कांग्रेस दे ना सिर्फ एकता मतलब कि लोकां नूं मिलन च दिखाई है, चेहरे भी इकट्ठे दिखाए ने भी असीं सारे इकट्ठे हां। जिहड़ियां फोटोग्राफ्स होईयां ने, जिहड़े हर थां ते लीडर्स इकट्ठे दिख रहे ने, ये हो सकता है अपना बदौलत होवे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दे करके होवे, ते ये राहुल गांधी दा भी इहदे विच पूरा जिहड़ा हैगा इज्जत जिहड़ी है राहुल गांधी दी भी दात रखी हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जे इत्थे हुई है और इत्थे उस यात्रा दे दौरान जिहड़े जिन्हां दा बहुत इत्थे ताकतवर मतलब कद्दावर नेता रहे ने चौधरी साहब, ते उन्हां दी डैथ भी उस दौरान ही हुंदी है, उन्हां दी वाइफ नूं खड़ा कीता जांदा। ते
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 580 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਕੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 6000 ਦੇ ਲਗਭਗ 5800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ। कुलदीप जी इसी पे एक सवाल भी जोड़ देते हैं कि कांग्रेस के जो स्थानीय एक विधायक हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को पकड़ा जो आउटर क्षेत्र के थे, और उनको पकड़ा और उन्होंने कहा कि जब प्रतिबंध है कि बाहर का वो नहीं आएगा मतदान के समय में, उसके बावजूद वो मतदान को प्रभावित करते घूम रहे थे, और पुलिस या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जी सर, एक इंसीडेंट नहीं हैगा, ये कुछ मैं ट्वीट देख रहा सी अज जलंधर नाल रिलेटेड, ते उत्थे बकायदा पिक्चर चढ़ाईयां हुईयां ने कांग्रेस वालियां ने, अकाली दल वालियां ने, कि अलग अलग जिहड़े बूथ इंचार्ज बनाए गए ने वो बाहरले जिहड़े हैगे जिलियां दे ने। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। अकाली दल हाल तक अपने पुराने दाग धोते लगा हुआ है। उन्होंने तो अपने 2 केंद्रीय मंत्री वहां पूरे उतार रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, अकाली दल भी, अकाली दल का तुसीं देखो हुण, एक जिहड़ा पिछे एक प्रकरण हो गया, मजीठिया साहब की रैली चल रही है ते उत्थे एक कुड़ी सवाल पुछ रही, तो ओहदी गिच्ची घुट लैंदे ने, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਟ 'ਚ ਆਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ एनालिसिस बनता है वो करना भी नहीं चाहते हैं, वो हम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जो है फैक्ट पे जरूर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो चौकोनी ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੌਕੋਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। जी कुलदीप जी, मुझे लगता है कि शायद जसवीर जी का कहने का सेंस थोड़ा सा चेंज था, नहीं तो आप दोनों ने एक ही सी बात है जी। वो भी कह रहे थे कि पार्टी पर असर पड़ेगा, पार्टियों पे असर की बात उन्होंने करी थी। उन्होंने हालांकि उसे पूरे पंजाब की बात पार्टी पे असर पड़ने का मतलब पूरे पंजाब पे पड़ना है, पूरे पंजाब। बस मैं यही एडिशन ही की है कि पंजाब पे असर पैना स्वाभाविक है जी। नवीन जी, आपके पास आऊंगा और सवाल आपसे, आप युवा भी हैं और स्थितियों को समझते हैं। अमृतसर में एक ब्लास्ट होता है, एक नहीं 2 होते हैं अचानक। उसके पहले आपको याद होगा जब ये सरकार बनी, उसके बाद में डीजीपी पंजाब के इंटेलिजेंस के मुख्यालय पर जो है हमला होता है रॉकेट लॉन्चर से। उसके बाद कई थानों पे होता है, कई जगह होता है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति थी कि पंजाब को डरा देने वाली बात हो कि क्या जिस पंजाब ने एक दंश झेला है आतंकवाद का, और उससे पंजाब की जो बर्बादी हुई है, जो स्थितियां हैं, वो हम सब वाकिफ। तो इन सब के बाद में आज जरूरत है देश में, प्रदेश में, सभी जगह कि रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन मिले, बच्चे अच्छे हो, संस्कार बने, इन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो डराती हैं। क्या इस चुनाव में इस तुरंत जो हुआ ब्लास्ट है, 36 घंटे में 2 ब्लास्ट, उसका कोई एक डर आएगा? जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस के जो पन्नू है, उनके फोन कॉल आए, जो रिकॉर्डेड कॉल आती है उनकी, उसके लिए धमकाया गया कि हाँ चुनाव में हिस्सा मत लीजिए, नहीं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्या इन सब चीजों का असर पड़ेगा? और क्या जो राजनीति का सवाल था वो वही है कि इसका असर आप कैसे देखते हैं और क्या ट्रेंड देखते हैं? जी नवीन जी। अजय जी, इसका फर्क जलंधर की जो चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि शायद ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वहां पर 2 अमृतसर में जो 2 धमाके हुए हैं 32 घंटे में, वो एक जांच का विषय है। उसके लिए एनआईए पहुंच चुकी है, उसकी जांच हो रही है। लेकिन जलंधर का एक जो सीमित दायरा है जहां पे ये इलेक्शन हो रहा है, वो लोग प्रचारों में इतना ज्यादा उलझ गए हैं। प्रचार हमारे, क्योंकि जो लोकल चैनल्स होते हैं, बड़े चैनल्स तो दिखा ही रहे हैं, उस इलेक्शन को कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोकल चैनल्स हैं, और हमारा जलंधर तो प्रिंट मीडिया का हब है, वहां से प्रिंट मीडिया चलता है, और वहां पर जो न्यूज लग रही हैं उसके हिसाब से जलंधर वालों को शायद पिछले कुछ दिनों में बाहर का सोचने के लिए मिल भी नहीं रहा है। वो घटनाएं जो हुई हैं वो बहुत निंदनीय हैं। कोई भी पंजाब का निवासी या फिर पूरे विश्व में रहता कोई भी निवासी हो, वो हम जो दरबार साहब है वो हम सबके लिए पूजनीय है। वो हमारे पंजाब का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। उसमें कोई जात धर्म की बात ही नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए। उसके आसपास भी अगर कोई घटना होती है तो हम उसके लिए चिंतित हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एनआईए वहां पर पहुंच गई है, जांच हो रही है। हो सकता है कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही शायद ऐसा किया गया हो कि मौजूदा सरकार है उसको थोड़ा नुकसान हो जाए इससे। तो ये जांच का विषय है, वो चल रहा है। लेकिन अगर जलंधर की बात करें या फिर पंजाब में जो पिछले कुछ समय में जब से आम आदमी पार्टी आई है, जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि सिद्धू मूसेवाले के फादर की तरफ से भी एक वीडियो लगातार जारी की गई है, कल जारी की गई है। उनकी तरफ से रैलीज करी गई हैं कितनी बड़ी बड़ी। उन्होंने तो शरेआम कहा है कि मैं सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हूं, आप इनको वोट मत डालिए, आप नोटा को जाके वोट डाल दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वोट किसको डालना। तो सीधा सीधा इस बात का नुकसान हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि कानून व्यवस्था। वो कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के फादर की स्टेटमेंट में अगर रिपीट करूं तो उन्होंने कहा कि अगर आप घर से वोट देने के लिए जा रहे हो, अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हो तो एक बार अपने छोटे बच्चों के चेहरे देखकर जरूर जाना कि आने वाले समय में आप इनको सुरक्षित देखना चाहते हो कि नहीं। अगर देखना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। ये उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट में बोल दिया। तो इसका मतलब, उनके कहने का मतलब यही है कि पंजाब की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम नशे पर काम करेंगे और रोज
रोज मौतें हो रही हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। एक समय पे अकाली दल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि अकाली दल पंजाब में नशा बेच रही है और नशा धड़ल्ले से उनकी तरफ से नौजवानों को बेचा जा रहा है। वो बात लोगों को बता के कांग्रेस सत्ता में आ गई। जब सत्ता से कांग्रेस से पूछा कि अब तो नशा रुक नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, नशा उनसे भी नहीं रुका। फिर क्या किया, आम आदमी पार्टी ने कहा देखो अकाली दल से नहीं रुका, कांग्रेस से नहीं रुका, हम रोकेंगे, हमें लेके आओ। अब क्या हुआ उनसे, एक साल में क्या हो रहा है आप जाके देखिए। बॉर्डर एरिया पे क्या हालात है बच्चों के। अभी लुधियाना की वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, वो मुझे लगता है कि 16-17 साल का बच्चा था, वो इंजेक्शन लगा रहा है हाथ में। तो अब तो कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, अब तो अकाली दल नहीं है सत्ता में। तो जब हम कह रहे थे कि हम इन्हें रोक देंगे, हमें सत्ता में लेके आओ, तो आज भी नहीं रुका है। ये लोग ये बातें नहीं भूल रहे हैं और जो पंजाब की कानून व्यवस्था है उसे भी नहीं भूल रहे हैं। और जलंधर की अगर आपने बात की, नवीन जी एक सवाल जोड़ दूं, नवीन जी एक सवाल जोड़ दूं, तो क्या इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है? नहीं, भाजपा को नहीं फायदा मिलेगा। इसका फायदा अगर जैसे अभी कुलदीप जी ने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि चौधरी साहब वहां पे लगातार उस समय पे जीते रहे हैं। हम याद रखें इस बात को कि 2014 में जब मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी, संतोष चौधरी जी ने वहां पर सीट जीती। फिर 19 में वही हुआ। पूरे देश की लहर अगर हम कहें एक तरफ थी, तो चौधरी साहब ने फिर वहां से सीट जीती 19 में। तो आप ये सोचिए कि चौधरी साहब का वहां पे कैसा रुतबा रहा होगा। तो अब हो सकता है उन्हें सहानुभूति की वोट वहां पर मिले, लेकिन जो मुझे कमी लगती है वो ये लगती है कि चौधरी साहब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान वो चल रहे थे, हमने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर उनकी तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। और कि जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है वो एक बार भी यहाँ पे प्रचार करने नहीं आई। आप देखिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक वहां पे बैठे हैं, 10-10 इलाके दिए हैं उन्हें, धमकी दी हुई है अगर आपके जो 10 इलाके दिए हैं अगर आप वहां से नहीं जीते हैं तो। संदीप पाठक की एक वीडियो भी वायरल हुई है, सुखपाल खैरा ने अपने पेज पे डाली थी। हमें नहीं मालूम वो वीडियो सही है कि गलत है, लेकिन वायरल हुआ है वो। तो उसमें धमकी दी गई है कि आप नहीं जीते, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि संगरूर हम हार गए हैं। अगर ये हम हार जाएंगे तो 2024 में हम लोगों को किस मुंह से कहेंगे कि हमें वोट दो। ये गंभीर विषय है और इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये चहेती सीट रही है और चौधरी साहब के जाने के बाद लोग कुछ भावनात्मक तौर से भी उनके साथ और जुड़े हैं। लेकिन अगर नुकसान होगा कांग्रेस को तो इस बात का होगा कि बड़ी लीडरशिप एक बार भी यहां पर आके उनके लिए प्रचार नहीं कर सकी। रही बात आपने अभी भाजपा की है, तो भाजपा श्रोमणी अकाली दल जब भाईवाली में थे तो पंजाब में उन्होंने पैर नहीं लगने दिए जल्दी किसी के। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे जैसे बड़े बादल साहब की आपने बात की है, वो मैं उन्हें कहता था जब भी मैं कभी किसी न्यूज चैनल के साथ बात करने का मुझे मौका मिलता है तो मैं यही कहता हूं। उन्हें कहते हैं कि वो पंजाब के बाबा बोर थे। पंजाब के बाबा बोर तो थे ही थे, लेकिन मैं उन्हें मानता था कि वो पंजाब के नाड़ी वैद थे। नाड़ी वैद, पंजाब में कहते हैं नाड़ी वैद। वो नब्ज समझते थे पंजाब की। नब्ज पकड़ के जो डॉक्टर बीमारी बता देता है ना, वो थे प्रकाश सिंह बादल। वो पंजाब की नब्ज को समझते थे। उन्हें मालूम था कि अब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। और पंजाब के हितों के लिए उन्होंने सभी धर्मों के लिए काम किया है। आप देखिए उनके अंतिम संस्कार में जो पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचे हैं वहां पे। इसलिए बादल साहब जो नाड़ी वैद थे वो पंजाब की सियासत में और लोगों के लिए बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए उनकी सहानुभूति की वोट भी वहां पे श्रोमणी अकाली दल को पड़ेगी जलंधर में। और उसके साथ जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहां पर एससी वोट बहुत ज्यादा है जलंधर में, बसपा के साथ उनका गठबंधन है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अगर वहां पर इसमें नवीन जी इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। बसपा जब पूरे हिंदुस्तान में बहुत कमजोर हो रही है या कहें खत्म सी हो रही है, जिस उत्तर प्रदेश में उसका सबसे बड़ा आधार था वहां वो सिमट के एक सीट पे रह गई, तो ऐसी स्थिति में बसपा क्या पंजाब में कोई कमाल दिखा पाएगी? जी अजय जी, कमाल तो नहीं होगा, लेकिन जो बसपा का पंजाब का वोटर है जी, वो बड़ा भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पंजाब के बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब हमने बहुत बार उनको इकट्ठे सड़कों के ऊपर देखा है।
आप किसी भी समुदाय की ताकत कब आंकते हैं? आप तब आंकते हैं जब उस पर भीड़ पड़ती है और वो इकट्ठा आके खड़ा हो जाता है। तो बसपा ने ऐसे जब भी कभी ऐसी समाज के ऊपर कोई बात आई है, चाहे स्कॉलरशिप की हो, चाहे किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो बड़ी गिनती में वो लोग सड़कों पे आके खड़े हैं। नो डाउट कि पंजाब की जो एससी कम्युनिटी की वोट है वो बहुत ज्यादा गिनती में कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई है। लेकिन बसपा पंजाब में जलंधर में, खासकर मैं जलंधर की बात कर रहा हूं, जलंधर में बसपा को बहुत सारी वोट मिलेंगी और उसके साथ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है, भाजपा को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। भाजपा को जो हिंदू कम्युनिटी की वोट है वो पड़ेगी ही, और इंदिर इकबाल और जो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जुड़े हैं, उनके साथ पार्टी में आए हैं, कांग्रेस से जुड़ के अब बीजेपी में आ गए हैं, उनकी अगर कुछ वोट होगी तो वो डलेगी। लेकिन अगर आम आदमी, मुझे लगता है जलंधर में अगर टक्कर है किसी की, वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि सुशील रिंकू के अलावा आम आदमी पार्टी को और कोई कैंडिडेट उनके पास ऐसा नहीं था कि जिसे खड़ा किया जाता और वो वहां पे कुछ काम कर पाता। एक तो सत्ताधारी सरकार है, उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा, सुशील रिंकू का बेनिफिट मिलेगा, नंबर 2 संतोष चौधरी अब नहीं है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जी जसवीर जी, आपके पास आऊंगा। एक चीज कही नवीन जी ने कि बसपा के कारण उसको अकाली दल और बसपा का गठबंधन फायदा करेगा, लेकिन जो आज तक पंजाब के इतिहास में दलित मुख्यमंत्री किसी ने दिया, चाहे चंद महीनों के लिए सही, कांग्रेस ने दिया, तो एक चेहरा दिखाया कि हम दलित को भी बना सकते हैं। आज उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, तो और ये दलित आरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये है, दूसरी चीज जो बताई नवीन जी ने, जो नशे को लेके और सारी चीजें, उन पे भी चर्चा चल रही है, तमाम कानून व्यवस्था पे भी चर्चा चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये अस्तित्व का सवाल है, और जैसा आपने कहा कि ये पंजाब की सभी पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व की बात है, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये आगे आने वाले चुनाव में भी एक संदेश देगा। क्योंकि जैसे चंडीगढ़ नगर निगम बड़ी छोटी चीज थी, उसमें एक बड़ा अच्छा मैंडेट ला करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक हवा बनाने का काम किया, उसी तरीके से कुछ सीटों का भी होता है। जी जसवीर जी। जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। पहली बात तो जेएपी कांग्रेस की, जैसे नवीन जी ने बताया तो सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि ये आमतौर पर ज्यादा समझ जड़ी है वो कांग्रेस की सीट रही है। बसपा की तुसी गल कीती आ, बसपा ने पिछली बारी इन्हां ने कलिया ने 2,04,785 वोटां लगे गए सी, ते जिहड़ी जो हाकम ते रह जाए आम आदमी पार्टी, इसको 25,000 वोट मिले। अभी वो हाकम दे रहा है, अभी कंपीटिटर। अभी जे मैं बताऊं, शायद मेरे नाल कोई मुतकल ना होवे, मैं एक गल कहूं, पंजाब के लोग इतने अवेयर हैं सियासत में, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब समझते हैं। और मैं ये कहूं कि इंडिया में जितनी भी स्टेट सबसे ज्यादा अवेयर है, लेकिन इनके 3 डिवीजन है, मालवा, दोआबा और माझा। माझे की जो बदमाशी होती है ना, वो 1 नंबर की होती है। मालवे वाले जो वो पिछलाग होते हैं, एक ने बोला ना इसका वोट डालनी है, ऐसे ऐसे ठीक है, उसकी प्रचार हो गया, बस जज्बाती की वोट डाल देनी है। जो दुआबे के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशा भी क्या हुए हैं, और ये समझते हैं हमारी वोट का किसको देंगे, इसको क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा, बोलेंगे सब कम आपके साथ है, कोई बात नहीं, आपके साथ है, किसी को ना नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक आपने देखा होगा, सभी पार्टियों ने ये एक बनाकर अपना पेपर डाला भी हमारे को जो बाबा जी हैं वहां के, उनकी सपोर्ट मिल गई, गुरु रविदास जी दरबार जी पादियों ने डाल दिया। उनको स्पष्ट करना पड़ा भी हमने किसी को सपोर्ट नहीं दी जी। और मैं ये बात बता दूं आपको, 2017 में जितने भी पंजाब के डेरे थे, उन्होंने अकाली भाजपा की सपोर्ट की थी। 1-2 डेरे थे जो बाहर में थे, जो नहीं गए थे, बाकी सभी डेरे। तो क्या असर हुआ उनका? जिस पार्टी को डेरे पे वोट है, वो मत सोचे भी हमारे को वोट वहां से बहुत मिलेगी। वोट सिर्फ उसी को होगी जो उनका दावेदार उम्मीदवार है, जो उनको अच्छा लगेगा।
इसलिए मैं ये सोचता हूं जो जलंधर की सीट आ फैसला कौन तो है जो उन्होंने सरदार कुलदीप सिंह जी ने किया, ठीक है उन्होंने कि पंजाब के लोगों में असर पड़ेगा, लेकिन मैं तो मेरा कहना तो भाव ये था कि पंजाब के लोग तो पहले ही बहुत अवेयर इसके बारे में, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा कहना ये बात थी। दूसरी जी 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 पार्टियों के बारे में क्यों कहा था, जेडी पार्टी जीतेगी वो सिकंदर बनेगी, बाकियों की फुल गवाल तो जो जिस भी स्टेज पे मर्जी रहे, ठीक है ना जी, मेरा कहना बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कुलदीप जी आपके पास आऊंगा और सवाल वही है कि जिस तरह नवीन जी ने तमाम सारी बातें बताई नशे को लेके, क्राइम को लेके और सारी चीजें, उनके प्रभाव हैं, दूसरी और चीजें हैं, और जिस तरीके से अभी पीछे साल भर का शासन देख लिया है आम आदमी पार्टी का, तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी कहती है कि इतना अच्छा, इतना कट्टर ईमानदार, इतना सारी चीजें, इसके बाद में हम क्यों नहीं जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। और जैसा वो कहा गया, उन्होंने बाहरी लोग तमाम सारे बैठाए, इन पे बाकी आरोप हो सकते हैं, लेकिन वो विधायक वो बाहरी है, वो प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, तो फिर यदि आप जीत रहे हैं तो ऐसी स्थिति क्यों? जी कुलदीप जी। देखिए जी, बात यह है कि 2000 ये जो 2022 की जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो बहुत जबरदस्त मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है, उसमें अब लगातार निगाह आ रहा है, वो कम हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये रही है कि वायदे बहुत किए गए थे, पूर्ण 2 ही हो सके, वो भी पूरी तरह नहीं हुए। एक बिजली की जो इन्होंने राहत दी है, या इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, इसके अलावा इसमें बाकी इसमें सभी एक मुद्दों सवाल पर। और जोड़ दूं। मोहल्ला जी क्लिनिक को लेकर तमाम सारे कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे तो कर दिया, जो किया नहीं जी किया वहां कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट के फार्मासिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सारा स्टाफ, और जहां जो परमानेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल थे, वहां स्थिति खराब हो गई। सर, मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने पहले ही एक बात की थी कि जो मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम है उसमें कमियां हैं, पर फिर भी लोगों को इसका फायदा हो रहा है। हालांकि कई जगह से, ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो ना, कई जो पुरानी जो चल रही हैं ऑलरेडी डिस्पेंसरीज, उनके जो डॉक्टर्स थे वो उठा के मोहल्ला क्लिनिक्स में भेज दिए, वो खाली हो गई हैं। तो वहां पर उल्टा उधर नुकसान हो रहा है, एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान हो रहा है। बस इतना जरूर है कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वहां पर लोगों की जांच हो रही है, उनको दवाइयां मिल रही है, उनके टेस्ट फ्री हो रहे हैं, ये जरूर है। इन 2 के अलावा जो नवीन जी बात बता रहे थे ना, कि बाकी सारे ही जो फ्रंट्स हैं उनके ऊपर ये कोई बहुत अच्छा क्या मतलब कि ढंग से कर ही नहीं पाए। आज भी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक लेडी गुहार लगा रही है, अपील कर रही है कि आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि उसके बच्चे की नशे की ओवरडोज के साथ मौत होगी। ये खबरें हम रोजाना पढ़ रहे हैं, रोजाना ही कुछ ना कुछ हो रहा है। इस मुद्दे पर वो कुछ नहीं कर सके, सैक्रिलेज के मुद्दे पर वो कुछ नहीं कर सके। अभी तक वो जो कोई नतीजा नहीं निकला। ये कहते थे हम इतने दिनों में नशे बंद कर देंगे, इतने दिनों में हम बेअदबी का ये कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा उनके लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। इसीलिए उनको सुशील, ये रिंकू है, सुशील रिंकू, ऐसा कैंडिडेट लाना पड़ा कांग्रेस से, क्योंकि उस कैंडिडेट का वहां पर आधार है दलित वोटों में काफी। तो ये एक चैलेंज देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वहां पर कद्दावर नेता होना, लगातार इलेक्शन जीतना, लोगों के बीच में बहुत बड़ा प्रभाव होना, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी मौत होनी, और उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना। वहां पर टिकट का पहले बहुत चक्कर चलता रहा है उनके बारे पंजाब में में बताया जाता है वो कांग्रेस। बहुत पढ़ी लिखी है, उनके बारे में जी जी, बताया जाता है वो बिल्कुल बहुत पढ़ी बिल्कुल लिखी है और बड़ा बिल्कुल सम्मान है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो है ही है। उनका बेटा भी तो एमएलए है, और उसी जलंधर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही है ना, विक्रमजीत, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा तो फिल्लौर से। ये चीजें उनके, हाँ, उनके बेनिफिट में ये चीजें लगातार चल ही रही हैं। ऊपर से जो मूसेवाला की जो बात अभी मैंने भी की थी, नवीन जी ने भी की है, तो मूसेवाला के फादर ने जो ये बात कही है ना, जी आप अपने बच्चे का मुंह देख के वोट देने के लिए जाइए और आम आदमी पार्टी को वोट ना करिए। चाहे उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको वोट आपने डालनी है, पर वो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ी थी विधानसभा की, मूसेवाला ने। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज हिट करेगी,
ये या तो ये वोट जा सकती है सिमरनजीत सिंह मान के कैंडिडेट को, ये हो सकता है कुछ वोट उधर चली जाए, नहीं तो ये वोट ज्यादा ट्रांसफर होगी कांग्रेस को। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो ये लीडर्स यहाँ के, जो जैसे मैं मोहाली में हूं, तो यहाँ से जो लोग मेरे संपर्क में हैं, या आम आदमी पार्टी के जो कुछ लीडर्स हमारे संपर्क में है, या अकाली दल के कुछ संपर्क में है, तो ये जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी वाले लीडर्स हैं, इनकी सोच ये है कि चाहे कोई भी वहां पर, ये जो सोच है ये चल रही है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं, हमारे मोहाली में ही कौमी इंसाफ मोर्चा से जो लोग हैं यहां पर धरने पर बैठे हैं, जो बंदी सिखों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, और वो बड़ी जबरदस्त डिमांड है, तो उन लोगों ने भी वहां पर जाकर जलंधर में, नवीन जी जानते होंगे, वहां पर उन्होंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, और उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट ना डालें। तो ये जो चीजें चल रही हैं, अच्छा वो जो कौमी इंसाफ मोर्चा, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट सीधा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि बंदी सिखों की रिहाई, वो कहते हैं अगर राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई हो सकती है, बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनकी रिहाई हो सकती है, तो बंदी सिख जो इतने समय से बैठे हैं जेल में, उनकी रिहाई क्यों नहीं? तो वो सेंटर के साथ रिलेटेड मैटर बन जाता है, तो वो भाजपा के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेन कंटेस्ट तो दो में ही रह जाता है। बाकी नवीन जी की बात भी सही है, जैसे आप याद करिए, हम बैठे थे जब पंजाब की विधानसभा इलेक्शन के समय, आप भी थे वो डिबेट में, मैं भी था, और मैंने आपको उस समय कहा था कि श्रोमणी अकाली दल की रैली में भीड़ तो बहुत जुटती है, पर अल्टीमेटली वो सिमट गए। अच्छा, अब बात यह है कि जैसे आपने कही बात, मैं आपकी बात को ही दोहराता हूं कि पंजाब में इस समय लोकसभा में कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है आम आदमी पार्टी का। उधर तो मेरे ख्याल से 7-8 हैं, राज्यसभा में इनके 8 के करीब है इनके राज्यसभा सांसद। लोकसभा में कोई है नहीं, लोकसभा में हाजिरी लगवाने के लिए पूरा जोर लग रहा है, और अगर ये नहीं होता तो इसका प्रभाव जो है आम आदमी पार्टी पर पड़ना बहुत जबरदस्त लाजमी है। देखिए, पिछली बार जब 2014 की इलेक्शन थी, तो उसमें तो आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट जीते थे, और जो पिछली इलेक्शन हुई है 2019 की, उसमें ये सिमट के 1 सीट पर रह गए। 8 सीट कांग्रेस ले गई, 4 सीट ये अकाली दल, 2 अकाली दल ने जीत ली, 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो आम आदमी पार्टी के पल्ले सिर्फ 1 सीट थी, वो भी मुख्यमंत्री वाली सीट थी, वो ये हार चुके हैं। तो अब सारा दारोमदार इस सीट पर लगा हुआ है। येन केन प्रकारेण, वो हिंदी में आप जो कहते हैं, हर तरीके से, किसी भी तरीके से सीट जीतने वाली कोशिश है, पर लड़ाई बड़ी टफ आम आदमी पार्टी के लिए। स्थिति इतनी सुखाली, पंजाबी जैसी कहने इतनी सुखाली नहीं है इन्होंने वास्ते जी पोजीशन। चलिए, नवीन जी से जल्दी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। नवीन जी, सबके आपने कंक्लूजन सुने, इसके बाद में आप किस तरह से देख रहे हैं, और फाइनली आप क्या कहते हैं? जी, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। जी, अनम्यूट करिए, वो अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ, जलंधर इलेक्शन के लिए आप कह रहे हैं? जी जी, जलंधर इलेक्शन में ऐसे है अजय जी, 1 बजे तक सिर्फ 31% जो वोटिंग हुई थी। लोग, अब ये नहीं मालूम कि वैसे बाई इलेक्शन में लोगों का रुझान थोड़ा कम रहता है, हालांकि छुट्टी है जलंधर में, वहां पे लोग जा सकते हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन बाई इलेक्शन में थोड़ा रुझान कम रहता है। और कुछ पंजाब में आज पिछले 2-3 दिन से मौसम ठीक था, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो हो सकता है लोग इसका भी परहेज कर रहे हो। 31% ही अभी तक जो वोटिंग हुई है 1 बजे तक, तो शाम तक कितनी वोटिंग होती है वो उसके आधार पे ही निश्चित किया जा सकता है। लेकिन अगर जलंधर सीट की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी और सुशील रिंकू ये फैक्टर रहेगा, इन्हें वोट पड़ेगी, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब चल रहा है वहां पे, हम वीडियोस में देख रहे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर फायदा किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वो पक्की सीट रही है। ये दोनों पार्टीज में आज की वो टक्कर मुझे लगता है चल रही है, ये मेरा अपना मानना है। तो क्या होता है वो आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और उसके बाद अगर इनकी दोनों की वोटों में कोई सेंध लगा सकता है तो वो अकाली दल और बसपा है। भाजपा वहां पे प्रदर्शन वैसा जैसा वो उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन पहले से
थोड़ा उन्हें फायदा जरूर होगा, क्योंकि उनकी सारी लीडरशिप पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय लीडरशिप भी जलंधर में बैठी है। तो थोड़ा फायदा जरूर होगा भाजपा को भी, लेकिन वैसा फायदा नहीं होगा जैसा वो चाहते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात कही है। और जिस तरीके से सभी लोगों ने बात बताई, जसवीर जी ने, कुलदीप जी ने और नवीन जी ने, उसके आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जिस तरह के पूरे हालात हैं उसमें जनता सारी चीजों को देख रही है। 1 साल की आम आदमी पार्टी सरकार की भी समीक्षा कर रही है। उसने बड़े लंबे समय तक वो सीट कांग्रेस को दी है, उस पर यकीन किया है। तो यकीन यदि इतना समय तक किया है तो निश्चित रूप से उसका विश्वास जगता है, और यदि विश्वास जगता है तो स्वाभाविक सी बात है उनको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका निधन हुआ और इस कारण से सिंपैथी भी वोट भी आएंगे। तीसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है कि हाँ कुछ हमारे वोट का परसेंटेज बढ़े और किस तरीके से आए, और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। वहीं उसी तरीके से अस्तित्व की ही लड़ाई अकाली दल लड़ रहा है, जो पिछली बार रनर रहा था। तो ये सारे फैक्टर हैं। इस फैक्टर के बाद में निश्चित रूप से यह आने वाले वक्त में पंजाब की राजनीति में एक बड़ा असर डालेगा। हालांकि चुनाव 1 साल के लिए भी है, लेकिन प्रभाव इसका बड़ा है, संकेत बड़े हैं, और चूंकि संकेत बड़े हैं इसलिए निश्चित रूप से पंजाब के लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर कैसे क्यों हुआ। और सत्तारूढ़ दल के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है, सभी के लिए सबक है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं।